Good evening to everyone. Respected Chairman Sir, respected GM Sir, senior officers, and my dear colleagues. Today, I am going to present a presentation on quality management of flood management and anti-erosion scheme, which was prepared by me along with Vishal Verma, JE, Aro Meghalaya, under guidance of Bhaskar Sudhari Sir. Yes, works. So, quality management of anti-erosion works. Flood management and anti-erosion works. Quality management in flood control and anti-erosion works. Flood control and anti-erosion works involve complex engineering tasks that protect land, infrastructure, and communities. Quality management ensures these works are planned, executed, and maintained effectively, meeting performance, safety, and sustainability standard. This is the definition. Before going to it, I am showing some flood management technique implemented by Brahmatra board. These are bank rebatement using geobag and boulder, construction of spar, groundness, bed bar, RCC, PSC performance screen, dampener, art and embankment. ये क्या होता है? ग्रोइंस क्या लिखा है? ग्रोनेस सर स्पार सेम ही है सर, स्पार और ग्रोनेस सेम है. So this is the one photograph bank rebatement using geobag. ये कहाँ का है? ये माजुली का है सर. So this is Southwest Khasi Hill bank rebatement using boulder, Meghalaya. कौन सा डेट का है ये? 29 March 2025. ठीक है. ये this on the spar constructed Majuli sir. And वो अफला क्या बोलते हैं उसको? अफला मुख. हाँ, अफला मुख वाला है ना ये? Yes sir. This is the RCC performance screen Majuli. And this is the art and embankment taken from Google sir actually. Earth embankment where? It's taken from Google. ये गूगल से लिया है सर, क्योंकि सर थोड़ा दिखाने के लिए. ने भी तो बनाए हैं ना एम्बैंकमेंट्स? सर रिटायरमेंट बनाया है मानकासर में. इस हाँ माजुली माजुली में बनाए हैं. हाँ, फेज 1 में तो एम्बैंकमेंट ही बनाया था. ओके. ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें पहले आते हैं एंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर लाइक एम्बैंकमेंट, स्पार एंड रिबेटमेंट्स. Number 2, prevent premature failures. Number 3, comply with CWC guideline for DPR, preparation of DPR, CPWD specification. Number 4, enable monitoring and traceability of work and materials. Number 4, achieve stakeholder confidence and public safety. सर ये है मेन हम लोग का. जस्ट गो बैक. स्टेकहोल्डर कौन? ठीक है. सही है, हम लोग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. स्कोप में सर हम लोग का पहले आता है प्लानिंग एंड डीपीआर प्रिपरेशन, जो हम लोग एज पर सीडब्ल्यूसी गाइडलाइन में करते हैं, हम लोग का जो एंटी इरोजन स्कीम है. नंबर 2, एग्जीक्यूशन. एक मिनट दोबारा बताओ क्या बोल रहे हो सर. स्कोप ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में जो फर्स्ट वन है प्लानिंग एंड डीपीआर प्रिपरेशन. दिस वाज डन बाय सीडब्ल्यूसी गाइडलाइन. हम लोग सर सीडब्ल्यूसी गाइडलाइन के हिसाब से इसको डीपीआर प्रिपरेशन करते हैं. तो सेकेंड है सर एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन. ये तो सर फील्ड डिवीजन एग्जीक्यूट करते हैं और सुपरविजन करते हैं. तो ये नंबर 2 है स्कोप. नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर ये इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. इसका डिटेल सर बाद में भी डिस्कस करूंगा. तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ये थर्ड है. एंड नंबर 4 ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. These are the some key component of quality management. जैसे quality planning, define quality objective and project specification, identify standard IS code, for example IS 14262 for flood management, BIS code, CPW norms. इसका भी डिटेल सब बाद में है. नंबर 2 है क्वालिटी एश्योरेंस, जो इसको ensure system and procedure are in place to prevent defect, ensure compliance with
contextual technical specification, regular review of design document, drawing and BOQs. And number three, quality control. Quality control इसमें सर one side check and lab testing of material like आर्ट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, बोल्डर, जियोटेक्सटाइल, कंक्रीट, मतलब जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ये सर some these are the some tools and technique which are you we have to use in the quality management. फर्स्ट वन जैसे चेकलिस्ट टेम्पलेट्स, जैसे हम लोग इंस्पेक्शन ऑफ आर्ट वर्क के लिए रिवेटमेंट लेयर एक्सेट्रा। लैब एंड फील्ड टेस्ट, जैसे सॉइल कॉम्पेक्शन होता है, मॉइस्चर कंटेंट, कंक्रीट क्यूब टेस्ट कंक्रीट के लिए, अगेन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर कंक्रीट, एंड फोटोग्राफिक एविडेंस प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड, और जियो टैगिंग ट्रैक फिजिकल प्रोग्रेस। एक मिनट वापस जाओ, धीरे धीरे पढ़ के बताओ एक बार। सर इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक है, नंबर चेकलिस्ट एंड टेम्पलेट्स। सो टूल्स एंड टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन इन एंटी इरोजन वर्क्स। जैसे ये सर थोड़ा एप्लीकेशन लिखा हुआ हम लोग की, मतलब जैसे आर्ट के लिए हम लोग कुछ चेकलिस्ट बना सकते हैं, फिल्म में क्या क्या चेक करना है, चेकलिस्ट एंड टेम्पलेट्स, ओके, टेम्पलेट बना सकते हैं, जैसे रिवेटमेंट के लिए। बी अप्लाइड इन इंस्पेक्शन ऑफ अर्थवर्क revetment layer. This is what you mean to say? No. Not understood the difference between tools, techniques and application. सर दो कॉलम है ना इसमें? दो कॉलम है सर। पहला कॉलम सर यही है, जो सपोज हम लोग आर्टवर्क का काम कर रहे हैं, मतलब एम्बैंकमेंट बना रहा है। हाँ, तो एम्बैंकमेंट में सपोज जो फील्ड डिवीजन काम करता है उसका चेकलिस्ट होता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, कैसे मतलब क्या क्या रहना आप चाहिए। यही कह रहे हो ना कि the tool of checklists and templates can be used for inspection of earthwork यस सर, and revetment layers. यस। ठीक है। Then lab and field testing for soil compaction, moisture content, concrete cube tests. Okay. ये कंक्रीट का एक टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट देखिए, जो कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन, उसका स्ट्रेन, उसका जो रेनफोर्समेंट है, ये मतलब इससे मेजर कर सकते हैं सर। प्री एंड पोस्ट, हाँ, अच्छा। फोटोग्राफिक एविडेंस हम लोग को करना है, जो प्री एंड पोस्ट जो हम लोग कर रहे हैं। और जियोटैगिंग फिजिकल ट्रैक फिजिकल प्रोग्रेस, इसमें जैसे हम लोग कोई प्रोग्रेस हो गया, सपोज 100 मीटर का हम लोग का बेंग रिवेटमेंट हो गया, तो वो हम लोग उसका लेट लॉन्ग लेके फिर हम लोग इसको जीएस में डाल के या कुछ सॉफ्टवेयर में डाल के फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं, मतलब वो जियोटैगिंग कर सकते हैं कि ये इतना हुआ है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, वो लोग वहाँ से लेट लॉन्ग देंगे, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन भी मतलब उसमें कर सकते नहीं, फोटो से फोटो का एक बार मेरे को बताओ, फोटोग्राफिक एविडेंस जो है हैं। इससे मतलब क्वालिटी का पता चल जाएगा थोड़ा, ये मतलब ना? सर ये भी एविडेंस थोड़ा रखते हैं, जब मतलब विजिट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो फिर हम लोग जब जियो टैगिंग करते हैं सर, तब कंपेयर करने के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा। राइट। जैसे अभी देखे थे फोटो, but there also are other technologies, na? Yes. For example, continuous observation. For example, sensor technology. Yeah? So you can go under the water. You can scan subsurface quantities. So there could be new technologies which also we should study. ओके नेक्स्ट, दिस आर सम मतलब इसको मेथड टू एंश्योर द क्वालिटी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइड साइट इंजीनियर्स, डेली इंस्पेक्शन रजिस्टर एंड मेजरमेंट बुक, एंड यूज ऑफ ड्रोन मॉनिटरिंग एंड जीआईएस मैपिंग। Deployment of qualified engineers, daily inspection registers, measurement books, use of drone monitoring and so on. Okay. दिस इज सम इंस्पेक्शन टेस्टिंग प्रोटोकॉल, जैसे ये लेफ्ट साइड में है मटेरियल पब्लिक वर्क्स, राइट साइड में टाइप ऑफ टेस्ट। सब टेस्ट तो इसमें नहीं लिखा सर, कुछ लिख दिया फिर भी, जैसे आर्टवर्क के लिए हम लोग जब मतलब एम्बैंकमेंट बनाता है, ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं, प्रोक्टर टेस्ट करते हैं तो डेंसिटी मालूम होने के लिए, मॉइस्चर टेस्ट करते हैं कि उसका मतलब वाटर कंटेंट जानने के लिए, फिर फील्ड डेंसिटी टेस्ट,
वो उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें दो है जो लैब में करते हैं सर, प्रॉपर टेस्ट, और फील्ड में करते हैं कोर कटर मेथड और सेल रिप्लेसमेंट। तो उसको हम लोग डिवाइड करके उसका रिलेटिव डेंसिटी निकलते हैं, और ये शुड नॉट बी लेस देन 95%। तब उसको मालूम पड़ेगा हम लोगों को कि ये एम्बैंकमेंट स्टेबल होगा। फिर सर ये बोल्डर, बोल्डर का जैसे साइज हम लोग को चेक करना है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है। कंक्रीट, कंक्रीट आरसीसी ऑब्लिक सीसी ब्लॉक इज ऑल्सो यूज इन पोर्कोपाइन। जैसा कंक्रीट स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। तो जियो सिंथेटिक और जियो टेक्सटाइल मटेरियल के लिए इसमें कुछ टेस्ट लिखा हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेन टेस्ट, टेंसाइल इलोंगेशन, परमेबिलिटी टेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ यूवी रेजिस्टेंस। ऑयल क्रेट जो उसका डायमीटर एंड स्ट्रेंथ मतलब टेस्ट करना है। These are the some IS codes of different type of embankment। जैसे हम लोग का सर आठन एम्बैंकमेंट, आठन एम्बैंकमेंट के लिए जैसे पहला कोड दिया है प्रोटेक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट स्लोप, स्लोप के लिए ये IS कोड हमको देखना पड़ेगा सर। तो फिर मॉइस्चर कंटेंट एंड कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, जो कॉम्पेक्शन टेस्ट हम लोग करता है, और मॉइस्चर कंटेंट तो जो वो बोला कैसे करना है, कितना वैल्यू है, ये 10379 में होगा। फिर सर स्टेबिलिटी एनालिसिस आठन एम्बैंकमेंट, इसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आठन एम्बैंकमेंट का ये वाला कोड है। फिर इसका मतलब जो सीज्मिक है, सीज्मिक स्टेबल है क्या नहीं, इसका 1893 में देख सकते हैं। सेकेंड हम लोगों का सर ये है नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा लिख दिया कंक्रीट एम्बैंकमेंट। ये जैसा कंक्रीट डैम में यूज होगा, और रॉकफिल एम्बैंकमेंट ये भी डैम में यूज होगा सर। रॉक डैम जो बनता है, किसमें यूज होगा? डैम जो बनाता है सर, जैसे कंक्रीट डैम, जैसे हम लोग कुलसी डैम डैम सर, ओके। कुलसी डैम जो बना था वो रॉक कंक्रीट था वैसे। रॉकफिल, हाँ। रॉकफिल भी है सर, जैसे नॉर्डिंग डैम जो रॉकफिल है। तो नहीं, एक चीज मेरे को जो समझनी है वो ये है कि हमने आईएस कोड बता दिए, ठीक है। सो आईएस कोड इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड, जी सर। right? So these IS codes we have to build into our contracts. What is the idea? Our RFP, NIT and contract. ये तो ऐसा सेंटेंस सर होता है कि एज पर रेलेवेंट आईएस कोड एंड सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स ऐसे लिखा होता है, मतलब सर जो Okay, उसमें already generic provision होता है, so they apply. यस सर। So what is it that we should be doing and we are not doing? Is, in order to ensure that the quality delivered is as per these codes. हाँ ये सर चेक करना पड़ेगा, जो मतलब ये क्वालिटी चेक करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये आईएस कोड फॉलो किया कि नहीं। हाँ, जो क्वालिटी चेक कर रहे हैं या फील्ड साइड इंजीनियर, जो फील्ड इंजीनियर जो होता है सर, वो लोग भी चेक करेगा इसमें कि ये लोग एज पर आईएस। so the job of the quality management cell is to number one, understand the framework, quality management framework, and number two, to find out what needs to be done in order to implement that framework in Brahmaputra board. What are the things that are required, and find out what that are already being done out of these and what are not being done, and then give proposals for introducing those things, for implementing those things. That is the mandate of the quality management cell. So that and you should also have here these your vision, your targets, timelines, that this we will do within this time, this we will do within this time. So that we are able to, the purpose of the cell is to make rapid progress in that direction. So I want all the cells to develop that mindset, that our job is to implement the standards in Brahmaputra with respect to whatever your cell is supposed to look after. Yeah. नेक्स्ट सर ये इसमें थोड़ा डिस्कस किया हुआ मैंने, जो टेस्ट है आठवें You want to say something? Sir, quality management aspects start with the specification.
It is mentioned in while we are doing the design and other things. So we used to mention the specification, how the thing will be done, and what material will be used, what quality of the material should be there. तो सबसे पहले सर इनको एक स्पेसिफिकेशन बनानी चाहिए. जितने भी तरह के काम हम करते हैं, दो तरह तीन तरह के ही काम करते हैं, कोई बहुत ज्यादा तरह के काम भी नहीं कर रहे हैं. लेकिन बैंक रिवेटमेंट का काम कर रहे हैं, बोल्डर से कर रहे हैं या तो जियो बैग से कर रहे हैं, और एप्रन कर रहे हैं तो सेम ही है. ठीक है, या हम थोड़ा इम्बैकमेंट का काम कर रहे हैं, या हम पोर्कोपाइन का काम कर रहे हैं. तो इन तीनों चीजों का पहले डेवलपमेंट का कर रहे हैं. यस Range development. हाँ. Now we'll be doing for irrigation and flood. सर इरिगेशन और उनके तो स्पेसिफिकेशन हैं, काफी हैं सर उसके. तो ये वाले जो वर्क्स हैं इनके स्पेसिफिकेशन पहले बनाओ. कि अगर हम अर्दन डैम बनाना है, हमें लीवीज बनानी है, जनरली अंतर होता है. डैम इस 5 मीटर हाई होने से डैम हो जाता है, अदरवाइज लीवीज या फ्लड इम्बैकमेंट बोलते हैं उसको. तो उसके अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, बनाने का ढंग भी अलग होता है, उसकी मटेरियल्स भी अलग होते हैं. उसमें उसमें थोड़ा लीवे भी होता है, हो जाता है. कोई भी जैसा भी मटेरियल हो उसी मटेरियल से बना देते हैं, बट डैम ही कांट डू. तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा वर्कआउट करो, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह के सॉयल हमें यूज़ करने हैं, नहीं करने हैं. तो और इसी तरह से रिवेटमेंट में भी सारी चीज़ें डेवलप करो, फिर चेकलिस्ट डेवलप करो, टेम्पलेट डेवलप करो, कि कोई भी जाए वो लेके जाए और पूछे कि भाई बताओ क्या किया तुमने. ठीक है, तो पहले स्पेसिफिकेशन डेवलप करो, उसके बाद फिर उसकी क्वालिटी कैसे असेस करनी है, लैब कैसे हमें बनानी है, क्या क्या चीज़ों को टेस्ट करना है, हमें कहाँ टेस्ट करना है, वेदर इट शुड बी डन इन निहारी और हमें साइट पे ही बनाने की जरूरत है. तो ये सब चीज़ों पे If we need to hire some Yes. agencies, एजेंसी. okay, for strengthening our quality management system. यस. If we need to hire some technology, some agents, some partners. सर हमारे जो वर्क्स हैं वो बहुत बड़े हैं नहीं सर बेसिकली, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगा कि बहुत लोगों को हायर करना है. बहुत पीपल आर कॉम्पिटेंट सर, दे कैन डू. लैब भी हमारे पास है, ये कंक्रीट टेस्ट ये वो हो जाएगा. जियोमेट्रिक्स का टेस्ट थोड़ा सा हमें एक आध मशीन और लेनी पड़ेगी, बाकी तो सब मोस्टली कैन बी डन इन हाउस सर. So in partnership Yes. with Nihari, निहारी. the quality management Yes. cell can do can पहले स्पेसिफिकेशन पे काम करना है. अभी भी सर जितने भी हमारे टेंडर होते हैं, actually हमारा mandate भी है under the board act, ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट, कि हमको स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं. अभी भी सर हमारे जितने भी टेंडर हो रहे हैं उसमें कुछ ही जगह पे स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई है. जैसे बलात वाले में तो थोड़ा स्पेसिफाई था, लेकिन पहले किसी टेंडर में स्पेसिफाई ही नहीं है कि किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह का साइज होगा, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं है. नथिंग इज मेंशन्ड. तो हमें दूसरे के एसओआर पे पूरा डिपेंड नहीं करना, क्योंकि स्टेट के पास इतनी नॉलेज नहीं होती. हम पूरा उनको एसओआर को ले लेते हैं, लेकिन हम कहीं स्पेसिफिकेशन नहीं देते. कल पकड़ोगे कैसे अगर किसी ने गलत किया? तो आप पकड़ ही नहीं सकते टेक्निकली. जब तक आप स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते. एब्सोल्युटली. इसलिए हम पूछ रहा था ना कि क्या ये कोड हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत है? कॉन्ट्रैक्ट में लिख देने से सर वो बेग टाइप का हो गया कि कोड फॉलो करें, ये करें. जब तक आप सर उसको देंगे नहीं, स्पेसिफिकेशन की एक पूरी किताब दी जाती है सर टेंडर के तहत, कि ये अगर करोगे, ट्रेंचिंग करोगे, खुदाई करोगे, एक्सकेवेशन भी करोगे, तो ऐसे करोगे, ये मेथड होगा. देन यू कैन फिक्स द कॉन्ट्रैक्टर इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. अदरवाइज विदाउट स्पेसिफिकेशन. फिर कोड्स का क्या फायदा है? अगर सब Codes कुछ are आपको there, sir. स्पेसिफिकली देना है, Yes, sir. तो फिर कोड का क्या फायदा? कोड आर देयर सर, कोड आर गिविंग सर्टेन थिंग्स सर. मान लीजिए डिजाइन करके हमने दे दिया कि ये स्लोप मेंटेन करो, नहीं करता वो नहीं, अगर हम यूं कहें जस्ट गो बैक टू दैट स्टैंडर्ड्स. सर. ये तो इन्होंने ऐसे ही दिखाया है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं डिजाइन में. मान लीजिए कि हमने 2:1 का स्लोप नहीं, दिया. मेरा पॉइंट ये है कि जी. स्लोप के लिए जी 1985 का ये कोई कोड है. जी सो अगर हम ये कहते हैं कि भाई स्लोप में ये वाला कोड फॉलो कर, जी. ठीक है, तो इज दैट नॉट सफिशिएंट? सर क्या होता है कि कभी कभी स्पेसिफिकेशन बहुत अगर एग्जॉस्टिव नहीं है तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? तो कोड प्रिवेल करेगा. कोड के अंदर जो लिखी होंगी बातें वो प्रिवेल करती हैं. तो उसको सपोर्ट करने के लिए सर ये दोनों चीजें आपस में, जो स्पेसिफिकेशन प्लस कोड विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बेसिकली. कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम स्पेसिफिकेशन देंगे अगर, तो फिर वो कहेंगे कि हम तो वी आर बाउंड बाय दिस स्पेसिफिकेशन. नो सर, वो कोड बाय द हम सर कोड से ही स्पेसिफिकेशन कोड से ही लेकर सर कोड से ही हम निकाल के देंगे सर सारे. इससे और खाली वो मेट्रोलॉजी नहीं होता है, वो कैसे करेंगे सर? फ्रॉम द कोड इटसेल्फ. यस.
क्या? वो मेथोडोलॉजी सर नहीं रहती है कि हम कैसे करेंगे। हाँ वो चीजें सर हमको टेंडर में, जैसे हम पोर्कुपाइन है तो पोर्कुपाइन को कैसे लेकर कैसे लेगा, क्या जैसे करेगा। बार्ज बनाएंगे हम, वहां से कोई मशीनरी से पुट करेंगे कि मैनुअली पुट करेंगे, वो सब चीजें नहीं लिखी होती बहुत डिटेल्स में किस में नहीं लिखी होती? हमारा टेंडर में काम करने नहीं, लेकिन लिखना वो पड़ेगा। सब लिखने से क्लैरिटी आती है। हाँ, अदरवाइज कंक्रीट के लिए So सर टेस्ट करने our- का अलग अलग कोड है, लेकिन बिल्कुल। हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हम so उसमें our दे देते हैं। NIT cell and our quality management cell and our planning and design cell, Yes, they have to work they in have to tandem. work in tandem. Yes. Yes, you have to develop because tender cell also has to develop model Tandem. forms. Yes. है ना? NIT Yes. forms. Hmm. Hmm. Correct. So all cells have to work in coordination with the other relevant cells, which are relevant for their purpose. Yes, it is very important because water is a multidisciplinary subject. We have to work with each other. सर मतलब इसमें जो मैं आईएस कोड लिखा हो उससे ही हम लोग स्पेसिफिकेशन देखेंगे, जो रिलेवेंट आईएस कोड है उससे देखेंगे कि पोर्कुपाइन के 3-4 आईएस कोड है तो उससे कैसे होना चाहिए। जैसे सीमेंट का अलग होगा, सैंड का अलग है, कंक्रीट का अलग है, तो उससे हम लोग देख के निकल, सार दिशा बोल रहे हैं कि उससे निकलना पड़ेगा हम लोग को कि ये सही है हमको। तो कौन निकालेगा? प्लानिंग एंड डिजाइन वाले नहीं निकालेंगे? सर, हम लोग ये लोग भी तो सर, निकालेंगे सर, दे हम लोग निकालेंगे सर। आपका अच्छा, आप निकाल के पहले तो उसको स्टैंडर्ड बनाओगे, हाँ, है ना? कि कैसे हमें check करना है। Specification इशू करो. Then those specifications will be utilized by the planning and design Yes. in their designs, right? They will specify there कि इसमें कौन सा वाला they are adopting, and Yes. then the same thing will have to be included in the NIT and the contract. Yes. Next. ये सर एक टेस्ट का थोड़ा डिस्कवरी 8वां एम्बेगमेंट का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है। इसमें हम लोग इसका सेन का एनालिसिस करते हैं, जैसे फाइन हो, मीडियम, कोर्स। ये है प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट। ये इसको जैसे एम्बेगमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी एंड मतलब ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसका भी 2 टेस्ट है, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोक्टर। अच्छा, एक मिनट यहीं पे रुको। आप मुझे ये बताओ कि जैसे ये टेस्ट है, just one example. This is the test for earthwork embankment. Yes. Okay. In order to check the quality, right? So हमारे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट चल रहे हैं या किए हैं हमने इन रिसेंट टाइम्स, उसमें ये टेस्ट होता है? क्योंकि सर होना चाहिए, क्योंकि सर नहीं, मतलब सेल का काम सिर्फ चाहिए से नहीं चलेगा, है कि नहीं? यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि भाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तो अभी नई नई सेल बनी है, बट अल्टीमेटली द सेल शुड बी एब्सोल्युटली अवेयर कि व्हाट इज द रियलिटी ऑन ग्राउंड. ठीक है सर। What is the reality on? Because unless you know the reality on ground, everything is in the air. All your knowledge is in the air. Okay, it is not of practical value. It will become of practical value if you know the reality and the practices on ground, and whether that reality needs to be changed, and whether those practices need to be changed. So that is very important, because those practices may not be optimal. So we have to then think about it. So this is the mechanism that we have to put in place. ये तरीके से होगा, इस तरीके से टेस्टिंग करनी है ना? क्योंकि अब ये जो टेस्ट है ये हमारी निहारी में अवेलेबल है. Yes sir, this can be done sir anywhere it is possible. It can be done anywhere. So so what is the system being followed at the moment, and whether it needs to be improved, needs to be changed? Maybe possibly there is no system. I am correct. So for example अच्छा, इसमें उनको भी बुलाना चाहिए हमको, इस तरह के जो हमारे अकाउंट्स वाले हैं, है ना? क्योंकि मॉनिटरिंग तो करने वही जाते नहीं सर, अभी तो नहीं जाते. नहीं, अभी नहीं जाते, but वही जाते थे, तो दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, राइट, एक्सपीरियंस. और दूसरी बात, बिल उनको पास करने होते हैं. नहीं सर, बिल पास नहीं करते, they just do the payments. पास तो इंजीनियर ही करता है सर. अच्छा, पास इंजीनियर करता है, बट दे डू चेकिंग.
they do the checking means whether procedural the kind of- procedure has been followed. only the procedure basically कि इस बिल में ये होना चाहिए GST For example, whether they never go in technical things. whether a particular test No that sir, was supposed to be done they are not has been supposed to do that, sir. It's a technical part, sir. While passing the bill, the engineer has to but it has direct relation with quality. yes sir, it's a direct relation, but it has to be maintained by the engineer, field engineers. Mandatory है उनके लिए. नहीं, some tests are there basically. You just showed one thing, but you never shown any durability test of the stone that was used there. Size is there, but durability is also very important. Suppose a very weak kind of boulder they put there, और 3 साल में उड़ जाएगा बोल्डर ही पानी से ही. ऐसे बहुत सारे रॉक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, करोड़ इरोड हो जाएंगे और करोड़ हो जाएंगे. तो there are many tests basically. So we have to know each and everything and establish The that point kind of is thing. this कि मतलब मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मोटा कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई नंबर 1 देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड. Yes. Okay. Number 2 there should be measurement. Okay. So for every parameter there should be a standard. Yes. And for every parameter there should be a measurement, and the measured value should correspond to the standard. This is management in project in engineering projects or in general also, because if you don't measure you can't manage, right? So it is about that. Measure करोगे तो फिर you also need a benchmark. So standard is what? Standard is a benchmark. So इसमें जैसे ये 2 टेस्ट बताया ना इन्होंने, जैसे अर्थ इम्बैंकमेंट बनाना 2 टेस्ट, सीव एनालिसिस बड़ा आसान सी बात लगती है. कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे चाल दिया, दिखा दिया कि इसमें सैंड इतना है, क्ले इतना है, सिल्ट इतना है. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली. द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन दिस कंस्टिट्यूएंट्स बेसिकली and the shear strength, and ultimately it defines the stability of the embankment itself. दूसरा जो इसने प्रॉक्टेड टेस्ट करा है सर, क्योंकि जब हम अर्थ डालते हैं उसके बाद लेयर में कंपैक्ट, चाहे वो 15 सेंटीमीटर का हो, 30 सेंटीमीटर का हो, डिपेंडिंग ऑन द रोलर कैपेसिटी एंड अदर थिंग. तो हम पानी के साथ एक प्रॉपर्टी होती है इसके सर, जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर वो बहुत अच्छे से कंपैक्ट, अगर वो अच्छे से कंपैक्ट होते हैं तो शियर स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है. मीन्स जितना हमने डिजाइन किया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए. सपोज कीजिए उसने कम मॉइस्चर ही नहीं डाला, ऐसे ही बिना कंपैक्ट करते ही बनाता चला, तो इट विल नेवर अटेन दैट काइंड ऑफ शियर स्ट्रेंथ. तो चांस ऑफ फेलर इज ह्यूज. तो चीजों को समझना भी है, मतलब कि क्यों करते हैं कोई टेस्ट, क्या उसके सिग्निफिकेंस. हम लोग कंक्रीट बनाते हैं. हाँ, एक एग्जांपल, जस्ट लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू. कंक्रीट बना रहे हैं. कंक्रीट में क्या है? देयर इज अ प्रोसेस, देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स and there is some sequence, and there are some time application, you can say, you know, that this thing has to be done for so much, for so long, and then this thing should be done for so long. Then if you do not follow the timings properly, right, timing protocols, then the strength will not be as per the as per the standard. The time is very important, sir. More than 30 minutes. If you use the concrete, that's a rubbish. That's nothing. Rubbish. Okay. Because the initial setting has started, then nothing so is. Then the question arises: how do you know whether the contractor on the site is maintaining these timings? सर कंक्रीट के लिए तो फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है. अगर कॉन्ट्रैक्टर ने बना लिया, हम लोग को मालूम नहीं है, खराब हो गया, तो उसमें ग्रेडिंग, मतलब वो आफ्टर कंप्लीशन इससे ग्रेडिंग निकल रहा है, कितना ग्रेडिंग है. जैसे रेनफोर्समेंट आजकल ऐसा भी है सर, कितना रेनफोर्समेंट डाला है वो पता लग जाता वो भी है, निकल सकते हैं सर हम लोग बाद में भी. अगर ड्यूरिंग सुपरविजन वो मिस्टेक हो गया, सपोज आफ्टर डेट अगर मॉनिटरिंग करने में वो मशीनरी लगा देंगे तो उसका कितना रेनफोर्समेंट है, कितना साइज है, उसका स्ट्रेंथ. जैसे हम लोग का ग्रेडिंग होता है सीमेंट का, आप जैसे बोल रहे सर सीमेंट का 30 मिनट्स के विदिन, अगर आप पानी देने के बाद 30 मिनट्स के विदिन में अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसका फुल स्ट्रेंथ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सपोज 28 न्यूटन पर mm², उसको मिलता है. अगर
40 मिनट्स में करेंगे तो उसको 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगा। तो सर ये वाला चीज अगर बाद में हम लोग वो टेस्ट में चेक करेंगे तो उसमें निकल आएगा कि ग्रेडिंग इसका 20 है, मतलब इसका वर्कमैनशिप में प्रॉब्लम है। और सो एक तो है कि बाद में टेस्ट किया, ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ निकाला, और उसमें क्या है, देयर विल ऑलवेज बी डिस्प्यूट आल्सो। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम करते हैं सर। दूसरी बात, उसको तो आप कहोगे टेस्ट रिपोर्ट लाओ, वो टेस्ट रिपोर्ट ला देगा आपको। यू आर नॉट, मतलब देयर इज अ लैब, ही हैज गॉन टू सम लैब, ही हैज गॉट, यू डू नॉट नो कौन सा सैंपल टेस्ट हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था, राइट, एंड देन आपको लाके दिखा दिया उसने। नहीं सर, इसमें क्या होता है, जो प्रोटोकॉल होता है इसका, कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है, हमारे 10-20 बैच चल रहे हैं कंक्रीट के, अलग अलग मिक्सचर चल रहा है। क्योंकि अगर 10,000 क्यूबिक मीटर, यहाँ तो हमारे यहाँ कंक्रीटिंग ना के बराबर होती है, वो थोड़ा बहुत होता है। यहाँ तो 1-2 मिक्सर चल रहे हैं तो बहुत है, कहीं कहीं तो 20-25 चल रहे हैं। वहाँ बैच वाइज फिक्स है सर, कि अगर इस बैच में हम 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बना रहे हैं तो कितने ब्लॉक्स कास्ट करें। तो वो पहले क्या करता है, ब्लॉक कास्ट करता है, और उसको फिर दूसरे दिन पानी में डाल देते हैं। वो टेस्ट होता है, उसके नंबर सब पड़े होते हैं। तो दैट वो ठीक है, कंक्रीटिंग वो कर सकता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग फिर होती है। अगर वो टेस्टिंग में फेल हो गया तो सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो दे बिकम केयरफुल। टेस्टिंग में ही सारा खेल भी फेल है हमारा जो मामला है ना, वो मतलब ऑन व्हाट आर वी रिलाइंग, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट वी आर रिलाइंग। टेस्टिंग शुड बी सर अवर इन हाउस। इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। यस, कि अब भाई वो जो लैब है उसको तो मालूम नहीं ना कि ये जो कंक्रीट लेके आया है ये कहाँ से लाया है। सर वो सामने होता है, वो सुपरवाइजर होगा, जो साइट सुपरवाइजर। जो जाके दोगे लैब तो टेस्ट करके दे, तो अगर आप उसको अच्छा वाला दे रहे हो तो वो अच्छा वाला ही टेस्ट। सर वो क्या होगा, उस दिन कास्ट होगा, दोनों साइन भी करते हैं, उसका ठेकेदार का आदमी और हमारा सुपरवाइजर दोनों में साइन। यस, साइन होता है। Are those SOPs being followed? No. That is the thing. तो ये यही इम्पोर्टेंट, इसलिए तो मैं बार बार पराग को भी बोलता हूँ कि जो इंजीनियरिंग सुपरविजन है वो नहीं हो रहा है। तो जैसे घर बनाते हैं नॉर्मल, नहीं होता। We are just leaving it to the contractor. Leaving it to the contractor. We are not checking the quality. We are not going there and seeing. So that is affecting the quality of the products. We have to develop the organizational habit, do the supervision and maintain records and follow the SOPs. सर कंक्रीट की क्वालिटी केवल इंग्रेडिएंट से नहीं है। आफ्टर आपने क्वेरिंग कैसे की, मत किया आपने, मान लो कंक्रीट कास्ट करके छोड़ दिया, पानी ही नहीं डाला, तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। बस वही तो देयर इज सम प्रोटोकॉल दैट हैज टू बी फॉलोड, कि उसको डालने के बाद उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, एवरीथिंग इज रिटन। 28 डेज तो सर क्यूरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो सर स्ट्रेंथ पकड़ते हैं सपोज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो आफ्टर 20 डेज 28 डेज क्यूरिंग, अगर 20 डेज क्यूरिंग करेंगे तो वो भी स्ट्रेंथ हम लोग को अचीव नहीं होगा। और जो कंक्रीट का सर ब्लॉक टेस्ट सर जो बोल रहे हैं, वो टेस्ट शुड नॉट बी फेल मोर देन 5%। 100 में 5 to फेल हो सकता है, उससे ज्यादा होने से ज्यादा डेविएशन तो जितना अलाउड है उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। So the point is that we are all engineers here. We know how crucial is the process is, है ना? How it is done, at what interval, time interval it is done. Otherwise, it will affect the quality, the strength, etc. We know it. All of us know because we have all studied it. So we need to develop sensitivity that when we are doing a project, okay, then we have to personally ensure that it is being done like that. Right? We have to personally ensure that the quality is not being compromised because this protocol is not being followed. Okay, we have to check that the compliance to the protocol. So that commitment needs to be developed. Yeah. Okay, आगे चलिए। सर दिस इज द फील्ड डेंसिटी टेस्ट, जो अभी मैंने इसमें 2 है, सेन रिप्लेसमेंट मेथड और एक कोर कटर। इसमें एम्बेडमेंट कितना लंबा हो रहा है आपका प्रेजेंटेशन? सर टोटल 25 स्लाइड है। हाँ, टेस्ट वेस्ट के बारे में छोड़ दो, मेन तो हो ही गया, आपने जो बात थी
टेस्ट वेस्ट का तो बाद में आप पूरा डिटेल देना ही पड़ेगा ना, वो सारी चीज यू हैव टू प्रोटोकॉल एक जनरेट करना पड़ेगा हर चीज का। ठीक है सर, मैं थोड़ा स्पीड कर, ये अपना तो आया पूरा टेस्ट पे ही है इस समय। आगे चलिए। हम्म, ये भी मतलब आईएस कोड है, जैसा कंक्रीट वर्क्स का सीमेंट जो यूज होता है रिलेवेंट, गुड, ये सम फील्ड टेस्ट है सीमेंट का, फील्ड में भी कर सकते हैं हम लोग। राइट, ये टेस्ट है, टेस्ट का पर्पस क्या है इसमें लिखा है सर, कौन सा टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं। ओके, फिर आईएस कोड और सेन, जो सेन यूज करते हैं हम लोग, उसका कौन सा आईएस कोड है, क्या टाइप, कौन सा टाइप है, पर्पस कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर ये सम इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ सेन है, जो मतलब पर्पस और रिलेवेंट आईएस कोड भी है इसका। और ये एग्रीगेट जो हम लोग यूज करते हैं उसका आईएस कोड है, और इसका टाइटल या पर्पस कौन इसके लिए यूज कर रहे हैं कौन सा, सेम ये है एग्रीगेट के लिए। आगे, ये जियो टेक्सटाइल से जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ से आईएस कोड में है, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, ये भी जियो टेक्सटाइल सेट का हम लोग टेस्ट जो हम लोग के एस्टिमेट में होता है, ये सब टेस्ट करना है। ओके, और ये ऑयल नेटिंग का ये दो आईएस कोड है सर इसमें, और ये हम लोग यूज करते हैं एंड यूजर स्कीम का। और ये नीचे है टेंसाइल स्ट्रेंथ, पीवीसी कोटिंग, ऑयल डायमीटर, आईएस कोड है रिलेवेंट। फिर से ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा देते हैं, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट, साइन इंस्पेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन रिकॉर्ड, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट। field test report, एक मिनट, field test report, site instruction, photographic documentation, and Sir, in another department basically, while passing the bill, if quality control sign is mandatory for that part of bill, otherwise no bill can be passed. what is mandatory? Quality control officer who is assigned the job of quality control, he has to sign on the bill. Yes, I have checked everything. It is as per this, as per this, as per this. Then only the engineer in charge can pass the bill. एक और चीज है जो it should also be I don't know how we have to implement that, whether through order or whether through contract, or I don't know whether it is a contractual condition, etc. That there is a junior engineer, there is a assistant engineer, there is an executive engineer. They are supposed to take the responsibility for their project. They are supposed to monitor the quality of the project. They are supposed to ensure that the project is completed on time, and there is no deviation from the contractual conditions by the contractor. So they can do so if they are going to the project site. So the engineer should go according to a set. So we may be having some instructions, but you will find that if you apply your mind to it now, you'll find that it is highly, it seems to be like if the executive engineer is handling 30 projects, 40 projects, then you know महीने में एक बार जाना है या दो महीना में एक बार जाना है, या इस टाइप की कंडीशन होंगी हमारी, हमने कहीं से ले लिया होगा, right? But if the executive engineer is handling one project, okay, or two projects, and I don't think there are many executive engineers that handle more than one or two projects. Maybe zero also. Okay. Most of the executives. Then if he's going only once in a month or once in 2 months, as per our this thing, okay, then what is he doing? Do we have the inspection norms? So we need to also No. So still look into these things. at present, sir, we don't have any inspection norms. So we should develop. Yes. That also should be part of this documentation and record thing. तो इसमें इंस्पेक्शन नॉर्म्स भी होना चाहिए। दो तरह के इंस्पेक्शन होते हैं, एक तो इंजीनियर सुपरवाइजर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन होता है जिसको क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग, उसके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग उसके इंस्पेक्शन नॉर्म होंगे। तो उन दोनों, क्योंकि जो साइट पे है उसकी जिम्मेदारी क्वालिटी की होती है सर, लेकिन उसको भी कोई चाहिए चेक एंड बैलेंस करने, तो वो है क्वालिटी कंट्रोल, जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, वो उनके अंडर में नहीं काम। एक तो ना हमको वो बनाने चाहिए, वो जिसको हम कहते हैं ना CPM पर चार्ट्स वगैरह, बार चार्ट एक्सेट्रा, टाइम मैनेजमेंट, और उसी में ही
हर एक्टिविटी को दिखाना चाहिए और किस एक्टिविटी के बाद क्या इंस्पेक्शन होगा. बिल्कुल. The inspection should be linked to specific activities. कि ये एक्टिविटी खत्म हुई तो ये इंस्पेक्शन, ये जेई का इंस्पेक्शन होगा या एक्शन का इंस्पेक्शन होगा और क्वालिटी कंट्रोल वाले का इंस्पेक्शन होगा. तो those things have to be made a part of the contract and the project document. सर असम डब्ल्यूआरडी में जैसे मैंने 11 डिस्कस किया था, उन लोगों का प्रोसीजर यही है. सपोज उनका जीओबक आ गया तो जीओबक वो लोग पहले इंजीनियर लेवल पे चेक करता है, चेक करके उनको पूरा नोट वगैरह एमबी वगैरह रिकॉर्ड करके फिर क्वालिटी कंट्रोल टीम को बुलाता है. फिर क्वालिटी कंट्रोल उसका इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट वो करेगा, चेक करेगा, उसका बाद ही वो यूज करेगा वो. करेक्ट. तो वो मतलब जब डिमांड देता है, डिमांड में वो क्वालिटी कंट्रोल का वो कॉपी चाहिए उनको, नहीं तो पास नहीं होता. तो ये सब लागू करवाना आपका काम, मतलब सेल का काम, हाँ, इसीलिए सेल बनाया गया है. ठीक है ना. दूसरी बात आपको चाहिए कि आप जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली मेट्रो है जैसे, आप जाओ एक हफ्ता वहाँ पे, हम यहाँ से चिट्ठी लेके जाओ, हम उनको वहाँ बोलेंगे कि हम अपने ऑफिसर को भेज रहे हैं, को आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को वो स्टडी करेंगे, मतलब सीखने के लिए, ताकि हम भी उसको रेप्लिकेट कर सकें. ठीक है. तो आप सीख के आओ वहाँ पे कि वो कैसे करते हैं. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इट, एंड यू शुड नॉट just get theoretical knowledge. You should actually see their documents, see their sites, how it is done, etc. So practically how it is done. Because जिस तरीके से वो करते हैं वो तरीका अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. Similarly NHI, because NHI also is doing good quality projects now, so you can learn a lot from them. So दोनों दिल्ली में आप करिए. NHI का तो यहाँ से भी कर सकते भी है सर, यहाँ भी तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ दिल्ली मेट्रो का वहाँ जाके. ठीक. ओके, नेक्स्ट. ये some advantages of quality management: increase lifespan of structure, reduce repair and maintenance costs, better disaster resilience, cost effectiveness, environmental and social benefit. These are some challenges during ensuring quality. The remote project location, unskilled or semi-skilled labor, flood season, disturbing work, variation of soil condition, delay in testing and report, public report, poor contractor capacity and supervision. Thank you, sir.